माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। प्रश्न संख्या 1 श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया नरसंहार हुआ है। माननीय सदस्य सर आए हुए थे, दोबारा बुला लीजिए नाम था। श्री जी लक्ष्मी नारायण। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें, एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। So thank you, Speaker sir. Question number 1, which I said my supplementary का. While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gutti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gutti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in the state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expedite its approval to ensure the timely restoration of the Gutti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहते हैं किरण जी। under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, we will certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir.
However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतः एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। माननीय बी रमेश जी, Fund has proposed for water threatening and strengthening of Buddhist rock cut, stirrups and repairs of caves and the ruins of structural charya with 3 crore cost estimate. The project proposed also provides for a public amenities and landscape of gardens. Kindly, Minister, Honorable Minister has to say on this. फिर मैं वही निवेदन करूंगा कि हमने उसको सूचीबद्ध किया है, उस पर धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि बोल रहे हैं। मल्लू रवि, क्वेश्चन नंबर 2 श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण सभापति बदल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ
कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई है। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियां और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% GST लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से GST हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी ये बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने GST की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं GST काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, GST काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती D.K. अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबल के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है। और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किया है और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत, लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर
पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर सकते हैं। जैसे कि आज वो पुलिस, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेक्टर में वॉलंटरी का काम करें कि वो वहाँ पे जाके सोशल वर्क के बारे में जान सके और इस नेशन बिल के लिए उनका भी योगदान दें। उसी तरह आने वाले फ्यूचर में हम रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम बच्चों से वॉलंटरी काम करा रहे हैं। और सबसे खास बात जो अभी इस 10, 11, 12 जनवरी को जो यूथ फेस्टिवल हुआ उसमें खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे दिन भर बच्चों के साथ थे और हमने यंग डॉलर्स का भी एक प्रोग्राम चलाया कि जिसके माध्यम से लगभग पूरे देश से 30 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। धन्यवाद। Honorable member supplementary. Yes. Honorable Speaker, sir. Now my second supplementary question to the Honorable Minister. What are the steps being proposed, taken and implemented under various schemes to streamline and transform the strength of India, Yuva Shakti, to make India a developed nation to become the #1 global leader in the world? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो माय भारत पोर्टल है उसके माध्यम से हम हर मंत्रालय की जो भी योजना है उसको और पोर्टल के ऊपर ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से युवाओं को भी पता चले कि हर मिनिस्ट्री में अलग अलग योजनाएं क्या शुरू है। और उसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में 1 लाख बच्चों को पॉलिटिक्स में लाना है जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन फैमिली का ना है, उसके लिए कई लीडरशिप प्रोग्राम भी हम आने वाले दिनों में अभी चलाने वाले हैं। श्री इटेला राजेंद्र। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोच लिया था, आज युवा शक्ति भारत के अंदर जो बहुत बड़ा शक्ति है उसके लिए हम स्पेसिफिकली मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो काम करने वालों को उस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में रखने के लिए कोई सोच है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। सेकंड थिंग अध्यक्ष महोदय, कि अब्रॉड में जो काम करने के लिए, उद्योग के लिए जो जाता है, उन लोगों को पासपोर्ट निकालते लेके, पासपोर्ट से लेके वीज़ा तक उनको एक टिकट का पैसा भी देके वहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट खुद उन लोगों को कुछ दिशा दिखाए तो बहुत अच्छा है बोल के कुछ गवर्नमेंट के अंदाजे में ये सोच है, मैं पूछना चाहता हूँ। थर्ड थिंग अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हर एक सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये पोल्ट्री एंड ये डेयरी सेक्टर में जो स्कीम लाया था, वो स्कीम अलग अलग राज्यों में वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। वो हमारा तेलंगाना के अंदर जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बारे में जो राज्य प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है। जिस स्टेट के अंदर जो प्रोएक्टिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे अमल करने के लिए केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है वो पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज 2047 तक जो विकसित भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है, वो अमल करने के लिए बैंकों ने उन लोगों को लोन देने के लिए जो दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छा तरह लोन दिलाने के लिए, अच्छा तरह लोन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सरकार कुछ निर्णय लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश का आर्थिक स्थिति जो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तीसरे स्थान पर दुनिया में लाने के लिए जो स्वप्न है वो अमल करने के लिए हमारा युवा शक्ति का जो मंत्रित्व शाखा है वो जरूर अच्छा काम करने के लिए हमारा सूचना मैं देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। माननीय
माननीय सदस्य ने युवा मंत्रालय के क्वेश्चन में स्कूलिंग की बात करी, लेकिन भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हम जानते हैं समझते हैं कि युवा देश की शक्ति है। युवा के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उसमें युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका सोशल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से उसको सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोजर मिले, इसके लिए माय युवा भारत पोर्टल तैयार करा गया है। और माय युवा भारत पोर्टल को हमने इंटीग्रेट करा है, हमने उसको इंटीग्रेट करा है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में आज 37 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है। हर दिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ जॉब को सॉर्ट करते हैं। माय भारत के वॉलंटियर वहाँ भी एक्सेस ले लेते हैं। देश के युवाओं को विदेश में अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी माय भारत प्लेटफॉर्म सीधा जोड़ता है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल टू ई माइग्रेंट पोर्टल। ई माइग्रेंट पोर्टल से 500 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हो जो विदेश में जॉब कोई भी जगह पे एक्सप्लोर हुई हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हुई हो, चाहे वो कंपनी के द्वारा फ्रॉड करी हुई हो, उसको भी वहाँ रिप्लेसमेंट करने के लिए भी सुविधा सुनिश्चित करी गई है। उसको कोई सोशल एक्टिविटी के साथ जोड़ना है तो उसको भी वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि देश के युवा का एक्सपोजर वैश्विक स्तर पर बने और देश को विकसित बनाने के लिए भी मेरे देश के युवा उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। उसके लिए माय भारत पोर्टल उसको एक्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 4 श्री डी पुरंदेश्वरी। माननीय मंत्री जी तक दीजिए। ऑनरेबल मेंबर। Sir, India today is witnessing an increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep concern for us, wherein cyber criminals are actually resorting to advanced sophisticated techniques to outmaneuver law enforcement and security systems. Sir, a particularly alarming trend in this direction is the digital arrest scam, wherein fraudsters are impersonating as law enforcement officers and coercing public to part with large sums of money. Sir, additionally, the use of mule bank accounts has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति, सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर इस घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। मैं इस बिंदु पर सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी रोकथाम हेतु गठित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद कराए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे थे। साथ ही अन्य प्लेटफॉर्म के संदिग्ध अकाउंटों को भी बंद किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार के तमाम विभागों की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और कॉलर ट्यूनर के माध्यम से आम जनमानस को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है और हम सबको पता है कि इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने मन की बात में कहा था कि पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। हम सबको जागरूक लोगों को करने की आवश्यकता है। ऑनरेबल मेंबर। Well, KYC verification is mandatory, sir, at the time of onboarding. More than 70% of the bank frauds have happened after
the KYC compliance, proving that one-time verification is simply not sufficient enough. Re-KYC and continuous customer monitoring, sir, have been suggested to be a key measure to track suspicious activities and prevent frauds. So many experts have also recommended mandatory re-KYC once every 2 years, and the use of artificial intelligence or AI-driven fraud detection mechanisms to minimize digital lending frauds. Sir, I would like to know from the Honourable Minister through you whether the government is in consultation with RBI in considering making re-KYC mandatory every 2 years and enforcing a continuous customer monitoring to prevent frauds beyond the initial stage of KYC, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केवाईसी के संबंध में आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन है, जो कि रिस्क के आधार पर ग्राहकों के केवाईसी अपडेट करने के निर्देश करती है। हाई रिस्क ग्राहकों के लिए री केवाईसी 2 वर्ष में, मिडिल रिस्क ग्राहकों की री केवाईसी 8 वर्ष में और लो रिस्क ग्राहकों की री केवाईसी 10 वर्षों में कराए जाने की आवश्यक किया गया है, जबकि रिपोर्ट करती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है। डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा भी प्रश्न डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड पर है। आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दिसंबर 2024 में बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच बैंक फ्रॉड के 18,461 मामले सामने आए हैं, जिसमें 21,366 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 गुना अधिक है। इस रिपोर्ट में एक नए प्रकार के बैंक फ्रॉड, डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन शामिल है। इसमें खास तौर पर अवैध चीनी लोन ऐप, इलीगल चाइनीज लोन ऐप का जिक्र किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत के गरीब और मजबूर लोगों को तुरंत लोन का लालच देकर फंसा रही है। ये ऐप्स लोगों के कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स और पर्सनल डेटा एक्सेस करके उनके साथ एब्यूज, थ्रेट्स और ब्लैकमेल कर रही है। चाइनीज क्रिमिनल सिंडिकेट्स और गैंग्स इन ऐप्स को संचालित कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी वित्तीय हानि पहुंच रही है। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सरकार इस अवैध चीनी लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने चिंता व्यक्त किया है कि फ्रॉड का केस काफी बढ़ गई है, महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्च 2023 के निर्णय के अनुसार फ्रॉड रिपोर्टिंग से पहले सुनवाई का मौका देना आवश्यक है, और इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष 24-25 की शुरुआत में बहुत सारे फ्रॉड जो पहले के वर्षों से हुए थे, बैंकों के अनरिपोर्ट किए फिर सुनने का मौका देने के बाद रिपोर्ट किया। इस वजह से 2024-25 में प्रथम 9 महीने में रिपोर्ट फ्रॉड की संख्या बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2024-25 में रिपोर्ट केस में बहुत सारे फ्रॉड वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे। मैं सदन को यह भी अवगत करना चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर के बीच हुए फ्रॉड की धनराशि मात्र 837 करोड़ रुपए है। तो माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूं कि 2024-25 में जो फ्रॉड की संख्या अत्यधिक दिख रही है वो माननीय उच्च न्यायालय के रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया के परिवर्तन से हुआ है। और मैं माननीय सदस्य को दूसरा प्रश्न जो फ्रॉड लोन ऐप्स के विषय में है, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार देश में अवैध लोन ऐप्स पर निगरानी रखने के लिए आरबीआई एवं अन्य निर्णायकों एवं हितधारकों को लगातार संपर्क में रहती है। आरबीआई ने डिजिटल ऋण के रेगुलेटर के लिए 2022 में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ में साइबर स्पेस में गलत सूचना, डिफेक्ट, अवैध ऋण आदि समस्याओं के निदान के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों समन्वयों के साथ काम करते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C समय समय पर फेक लोन ऐप्स एवं फेक लोन वेबसाइट का परिचालन बंद करता रहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते? ओके, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 6 श्री जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार, माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पर प्रस्तुत। सर, मेरा क्वेश्चन है कि 15 साल से वो केबी विद्यालय, जो केबी विद्यालय तारकेश्वर में जो पौरसभा अतिथिशाला में परिचालित हो रहा है, क्यों निर्धारित समय के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन प्रदान क्यों नहीं किया? जमीन प्रदान नहीं किया का पीछे क्या क्या कारण है? स्कूल के पढ़ाशुना के लिए माननीय सदस्य संक्षिप्त में शाखा विस्तार परिकल्पना क्यों किया है? वो अलग जो विभाग है, वो शाखा पढ़ाई के लिए जो कॉमर्स और कला विभाग का क्या परिकल्पना है? ये मेरा क्वेश्चन है। सभापति जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस है और क्वालिटी एजुकेशन है, उसका फोरमोस्ट एक संस्था है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं शेयर करता हूं सांसद जी के कंसर्न को। 2011 में केंद्र सरकार ने तारकेश्वर में डिस्ट्रिक्ट हुगली में केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किया, और सैंक्शन की अप्रूवल की कोई शर्तें होती हैं। जो जमीन स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी इस केस में राज्य की सरकार थी, उन्हें उपलब्ध करानी थी और रेंट फ्री टेम्परेरी अकोमोडेशन देना था, जिस प्रेमिस में स्कूल चल सकता था। 2011 से लेकर 2017 तक, क्योंकि राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई, उस कारण से देरी हुई। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। तो इस परिसर में कैसे वो केबी का शिक्षा बढ़ाने के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या अलग कोई परिकल्पना किया है? ये मेरा क्वेश्चन है। सर, केंद्रीय विद्यालय पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो, इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से विचार करती है। जब प्रस्ताव मिलता है, 5 साल में 60 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है और लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। मुझे खुशी है बताने में कि तारकेश्वर, जहां केंद्रीय विद्यालय का जिक्र सांसद जी ने किया, अभी दूसरी किस्त भी जारी की गई है जुलाई 2024 को। वहां निर्माण के संबंध में सांसद जी लगातार फीडबैक दे सकते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा और हम सबकी कोशिश रहेगी कि सांसद जी के फीडबैक के अनुरूप काम हो। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य अतुल कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 श्री विजय कुमार उप विजय बसंत। प्रश्नकाल नहीं पूछना चाहते आप? श्री वी मणिकम टैगोर, प्रश्नकाल पूछना चाहते हो? जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 8। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर ऑनरेबल मेंबर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज माफी संबंधी मेरा सवाल है
ये कर्ज चिंता का विषय। अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त 2023 को इसी सदन में मेरे सवाल के जवाब में राजस्थान के किसानों पर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल बकाया कृषि कर्ज 1,47,538.62 करोड़ रुपए था और आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार ये कर्ज अब 1,74,798 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए दावों और योजनाओं के बावजूद कोई सुधार किसानों की आर्थिक स्थिति में नहीं हो पा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाती है, जबकि दूसरी तरफ राइट ऑफ के नाम पर बड़े उद्योगों के लाखों करोड़ों के कर्ज बढ़ाती है। आपका प्रश्न क्या है? मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ साहब, कर्ज माफी का मेरा प्रश्न है, उसके मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ मंत्री जी को। प्रश्न पूछो आप तो। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने जो जवाब में देश के किसानों पर बकाया कृषि कर्ज का ब्यौरा दिया है वो भयावह है। क्या आपकी सरकार ने वर्तमान में विगत कार्यकाल में किसानों का कोई कृषि कर्जा माफ किया है या कृषि कर्ज में कोई राहत किसानों को दी है तो उसका ब्यौरा प्रदान करेगी? पहला सवाल है मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ऑलरेडी वो सभा के बटन में रखा हुआ है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और 2014 से अब तक सरकार ने किसानों के हित की रक्षा के लिए तमाम प्रयास किया है। अगर आप देखें तो 2014 में जहां कृषि बजट 21,933 करोड़ हुआ करता था, वहीं पे 25-26 में 1,71,437 करोड़ रुपया हुआ है। वहीं पर देखें अगर जहाँ कर्ज माफी की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अगर देखें तो 10 सालों में 3.46 लाख करोड़ रुपए का लोगों को सहायता प्रदान की गई है। वहीं पे उर्वरक की सब्सिडी हम दे रहे हैं, उन्नत बीजों के विकास की हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पर देखें तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नए यूरिया के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं, भंडारण की सुविधा में भी वृद्धि दे रहे हैं, कृषि अवसंरचना का विकास आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर देखें अध्यक्ष जी तो एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एमएसपी में बढ़ोतरी हुई नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। 25-26 के अगर बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इस बात को पुनः रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं में कृषि प्रमुख होगा। बजट 25-26 में अन्य कृषि योजनाओं के साथ साथ पीएम धन योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को फोकस में रखा जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस प्रकार हमारी सरकार कृषि की लागत कम करने से लेकर उत्पादन उचित मूल्य दिलाने के लिए सभी सार्थक प्रयास कर रही है। मेरा दूसरा मरने वालों की में मरने वालों मेरा सप्लीमेंट्री में मरने वालों की सूची दो में मरने वालों सप्लीमेंट्री में मरने वालों। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करवाने के लिए राजस्थान सहित देश के किसानों पर बढ़ती ऋणग्रस्त वित्तीय संकट का आकलन करवा के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने की योजना पर कोई विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताने का कष्ट करें, क्योंकि देश का किसान कर्ज माफी पर सरकार की मंशा को जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, ये बताए कि किसान का कर्जा माफ होगा या नहीं होगा? ये बताओ ना, राजस्थान में कौन सी सरकार ने कर्जा माफी की बात की थी? बताया करो ना आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 श्री जयंत बसुमतारी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय सदस्य उत्तर सभा पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्छ महोदय। मंत्री जी से मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में 284 KGBB स्कूल है, इनमें से 19 KGBB रेंटेड प्रेमाइस में है, तो इसको
अपने परमानेंट प्रेमाइस में ले जाने के लिए कोई धनराशि दिया गया है और कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा इसको बताने की कृपा करें। सभापति जी, केजीबीवी का अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समग्र शिक्षा के तहत होता है और राज्य सरकार उसमें प्रस्तावित करती है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड अकॉर्डिंगली कार्रवाई उसको तय करता है, सैंक्शन देता है, उस अनुरूप कार्य होता है। केजीबीवी को लगातार अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार अहम फैसले ले रही है। केजीबीवी का अपग्रेडेशन 2018-19 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2024 तक 2616 केजीबीवी अपग्रेड हुए हैं और 313 अपग्रेड हुए हैं 10वीं कक्षा तक और 2303 अपग्रेड हुए हैं 12वीं कक्षा तक। इसके अतिरिक्त आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी केजीबीवी में देने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, सारा नोटिस में 55 वैकेंट पोस्ट है। इनमें से आसाम में 52, 52 और सिक्किम में 3। सारे देश में 5138 केजीबीवी है। इनमें से 28,333 सैंक्शन पोस्ट है। आउट ऑफ दिस 3,860 वैकेंट पोस्ट है। ये कब तक नियुक्त किया जाएगा इसको बताने की कृपा करें। सर, आंकड़े अभी सांसद जी ने पेश किए, ये उत्तर में प्रस्तुत भी किए गए हैं। जो रिक्रूटमेंट है वो एज पर पॉलिसी होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के पटल पर रखना है। अभी पूछो। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स जो इस साल का यूथ फेस्टिवल रहा है, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर तो शहरी क्षेत्रों तक सभी बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगी कि इसमें 12 लैंग्वेज में ये कंपटीशन यहाँ पे हुआ था, जिसमें हमने विकसित भारत क्विज कंपटीशन लिया। उसके बाद विकसित भारत ऐसे चैलेंज कंपटीशन हमने लिया, जिसमें 10 विषय यहाँ पे रखे हुए थे जो कि विकसित भारत को लेके ये बहुत अहम थे। उसमें मैं बताना चाहूँगी कि विकसित वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, स्टार्टअप इंडिया, एग्रीकल्चर, विकास भी, विरासत भी, यही 10 विषयों पे हमने ये कंपटीशन लिया था और देश के कोने कोने में से यहाँ पे बच्चे आए थे। लगभग 3,000 के लगभग भारत मंडपम में उनके उपस्थिति में ये प्रोग्राम हुआ है। आलोक जी पूछना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक राज्य और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीधी और सिंगरौली जिले में उप महोत्सव को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि हर राज्य में राज्य सरकार की तरफ से भी ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं और जैसे पहले भी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि माय भारत एक ऐसा
पोर्टल है कि जिसके माध्यम से जितने भी योजनाएं भारत सरकार की और खास करके यूथ को लेके जो भी योजनाएं माय भारत के पोर्टल के माध्यम से हर राज्य का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। धन्यवाद। श्री नवचरण माझी, क्वेश्चन नंबर 11 श्री एंटोनी। माननीय वित्त मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 12 श्री धैर्यशील संभाजी राव माने। धैर्यशील माने। माननीय मंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, बात मत करिए। माननीय पर्यटन मंत्री जी, सर सदन के पटल पे रखा गया सर। श्री सुधीर गुप्ता। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को और माननीय पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 40 परियोजनाओं को चुना है और उसमें लगभग 3,295 करोड़ और 2,175 करोड़ रुपए का राशि स्वीकृत किया है। उसमें से मध्य प्रदेश की 2 परियोजनाएं भी है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में देश और दुनिया में पर्यटन के नाम को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हिंगलाज रिसोर्ट और हिंगलाज का स्थान जहां उमा महेश्वर नंदी की प्रतिमा फ्रांस और वाशिंगटन गई थी। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र में जो रॉक कटिंग का मूवमेंट है, धमनार की गुफाएं, वो विश्व प्रसिद्ध है। स्वदेश दर्शन सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चीता अतिशीघ्र और मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा पानी संग्रह भी वहाँ है। कार्तिकेय, नृत्य गणेश, कुबेर, नंदी, उमा महेश्वर, नवग्रह, ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं, 4 लाख वर्ष पुराना रॉक कटिंग का भी मूवमेंट है। क्या मंत्री जी भारत सरकार के माध्यम से सीधे मध्य प्रदेश सरकार को जोड़ते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र को नेशनल मैप पर लाने के लिए प्रयास करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्पेशल ग्रांट्स में 40 प्रोजेक्ट जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के भी हैं को इंक्लूड किया गया है। माननीय वित्त मंत्री यहाँ बैठी हैं, मैं उनको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 3,295 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसा देने का काम किया है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि स्वदेश दर्शन पे जो भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं और उसके बाद क्या उसको विश्व के पटल पर लाने के लिए कोई योजना है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि टूरिज्म के किसी एक डेस्टिनेशन पर्टिकुलर को विश्व पटल पर लाने के लिए कोई इस तरह की स्ट्रेटेजिक योजना के व्यक्ति काम नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इनक्रेडिबल इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के सारे प्लेटफॉर्म से नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां भी सहभागिता करती है वहां अपने सारे टूरिज्म पोटेंशियल को डिपिक्ट करने के लिए काम करती है। ऐसे सारे आयोजनों पर वह जो है प्रमुखता के साथ में मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य की के लोकसभा क्षेत्र के ऐसे स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों को भी प्राथमिकता के साथ में सारे टूरिज्म फेयर स्मार्ट सब में डिपिक्ट किया जाए। इस पर हम निरंतर काम करते हैं और आगे भी प्रमुखता के साथ में इस पर काम होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 श्री उमेश भाई बाबूभाई पटेल। उमेश भाई बाबूभाई पटेल। सर सवाल नंबर 13। माननीय मंत्री जी, क्या है? माननीय सदस्य
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इतने वर्षों से विचार क्यों नहीं किया गया? वर्तमान में दमन और दीव में छात्रों को जो उच्च शिक्षा की डिग्रियां दी जाती है वो अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की एफिलिएशन में रखती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों को अपने प्रदेश की डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कितने समय तक का इंतजार करना होगा? माननीय मंत्री जी क्या बता सकते हैं कि क्यों हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है? मैं यहाँ पर औपचारिक रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दमन और दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास जिलों से छात्रों को भी लाभ पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ में मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज के टॉप 100 यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हमारे प्रदेश में स्थापित किए जाए ताकि यहाँ के बच्चों को फॉरेन जाने के बजाय यहीं रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सके। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य अपने द्वीप समूहों में यूनियन टेरिटोरी में दादर नगर हवेली और दामन दीव में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरा इलाका में सिर्फ 12,414 विद्यार्थी है और पूरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उसमें से 3 केंद्रीय अनुदान से चलने वाली संस्था है। विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में सरकार उस दिशा में सोच सकती है। मैं सरकार से कह रहा हूँ, हमारे प्रदेश में प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी की स्थापना के कोई प्रबंधन नहीं है। बात सही है, पर मंत्री जी अब तक हमारे प्रदेश में एसएससी और एचएससी का बोर्ड तक गठन नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिना सरकार की प्रतिबद्धता से, बिना यूनिवर्सिटी के गठन से हमारे बच्चों को उचित एजुकेशन कैसे प्राप्त होगा? क्या हमारे प्रदेश के बच्चों को भारत के अन्य राज्यों के बच्चों की तरह आधुनिक एवं अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या बिना बेसिक शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रदेश के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चे के साथ हेल्थी कंपटीशन कर सकेंगे? तो मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रदेश में हमारी जनसंख्या को ध्यान में लेते हुए हमारे प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। धन्यवाद महोदय। स्पीकर साहब, मैं पिछले दिनों में दादर नगर हवेली और दामन दीव इलाका में दौरे में गया था। मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा। मैं वहाँ की स्कूली शिक्षा को देखा। इन दिनों में जो नए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हुए हैं, इनको देखा। वहाँ के प्रशासक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ अच्छे मान की शिक्षा अनुष्ठान में भी बनना शुरू हो गया है। दादर नगर हवेली और दामन दीव की विद्यार्थियों को सर्वभारतीय स्तर पे हम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहाँ की यूनियन टेरिटोरी की नेतृत्व और भारत सरकार दोनों मिलकर, मैं तो उल्टा कहूँ, मैं आने के बाद देश की अनेक इलाके की शिक्षा प्रशासकों को दामन दीव वहाँ के शिक्षा देखने के लिए भेजा है। वहाँ अच्छा शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्वेश्चन नंबर 14 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि PMSY योजना के तहत विशेष रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्र में कितने लोगों श्रमिकों को पेंशन दी गई है और पेंशन के साथ साथ कितने राशि का आवंटन किया गया है, मासिक रूप से कितनी राशि दी जाती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ सामान्यतः अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सामान्य वर्ग और मजदूरी करने वाले लोगों को मिलता है और ऐसे लाभार्थियों को लाभ मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले और उनकी पिछली लाइफ में उसको असुविधा ना हो, इसलिए 3,000 तक का पेंशन देने का प्रावधान करा गया है। मध्य प्रदेश की ओर से आज तक हमें 1,82,944
लोगों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा है, उसकी राशि कट रही है। जब 60 साल की आयुष्य पूरी होगी तब उसको 3000 मिनिमम पेंशन मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 3 वर्षों के अंदर कितने श्रमिकों को इसकी पेंशन की राशि दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक पूछा है, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। राज्य का फिगर मैंने कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो कुल लाभार्थी है उसकी सूची अभी आपके सामने रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन सुनिश्चित हो, और सुनिश्चित करने के लिए पिछली लाइफ में सुविधा है, उसके लिए उसको हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। आज देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण किया जा रहा है। वैसे ही देश में 51 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिसको हमने प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत उसको पेंशन सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री संदीपन राव बुमरे, क्वेश्चन नंबर 15 मोहम्मद रकीबुल हुसैन। मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, और सदन के पटल पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर। उत्कर्ष वर्मा मधुर। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे रखा है। खेल युवा मंत्री जी, मैंने आप टॉवल रख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 श्री सनातन पांडे। वित्त मंत्री जी, श्री चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो 2024-25 में शुरू की गई, इस देश में युवाओं को कौशल करके उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें। इसके माध्यम से राजस्थान में क्या विशेष रूप से क्या कार्य योजना बनी है, और जो 12 माह का इसमें समय दिया गया है जिसमें वास्तविक रूप से क्लासरूम में नहीं बल्कि वो उस काम को सीखे और अनुभव के आधार पर रोजगार खड़ा करे, तो राजस्थान के स्पेसिफिक में पूछना चाहता हूँ उसके लिए विशेष क्या कार्य योजना बनी है? धन्यवाद। और उत्तर दे रहे कॉर्पोरेट मंत्री जी, आंसर इज राइट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 श्री भर्तृहरि महताब जी। क्वेश्चन नंबर 18 सर। आंसर इज राइट। Sir, it is indeed gratifying to note that after the deduction, the corporate tax has increased and investment from foreign countries also has increased. But has it resulted in generating more employment? The number that has been given us is very negligible. What steps are being taken to generate more employment with the reduction of the corporate tax? Sir, since the corporate rate has been brought down, for incentivizing employment, a lot of every scheme that we bring in focuses on employment generation. Employment generation in the last July 24 budget has also been given 5 different schemes through which employment is being focused on. My second supplementary would be the
tax foregone, how much it has been invested or reinvested in those companies? So I don't think we have the data on that, sir. प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों और विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाएं। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्लीज, माननीय सदस्य